خسارے میں چلنے والے فیڈرز کے نقصانات میں کمی ناگزیر، زیادہ خسارے والے بجلی کے فیڈرز شمسی توانائی پر منتقل کیے جائیں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت دور افتادہ علاقوں میں شمسی توانائی کے حوالے سے اجلاس میں فیصلے، پیسکو اور کیسکو کے زیادہ نقصان میں چلنے والے فیڈرز میں آزمائشی منصوبوں کا اجرا کیا جائے۔ منصوبوں کو کامیاب بنانے کے لیے منتخب نمائندوں سے مشاورت اور کمیونٹی کی شرکت یقینی بنائی جائے۔ وزیراعظم پاکستان یو اے ای کے تعلقات مؤثر معاشی تعاون اور سرمایہ کاری کی سمت بڑھ رہے ہیں۔ شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے حالیہ دورہ پاکستان نے شراکت داری کو مزید تقویت دی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف سے متحدہ عرب امارات کے معروف سجوانی گروپ کے وفد کی ملاقات۔ آئی ٹی، جدت، بلاک چین اور دیگر ٹیکنالوجیز کے شعبوں میں بزنس ٹو بزنس تعاون اہم ہے۔ وزیراعظم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ان کی اسٹریٹجی، ان کی حکمت عملی اور ان کی قیادت میں پاک فوج نے جو ہے وہ فتح کے جھنڈے گاڑے۔ پاکستان آئسولیٹ ہوا ایک شخص کی انا کی وجہ سے۔ اب اگر دنیا کے ممالک ریڈ کارپٹ سے لے کے پرپل کارپٹ آپ کے لیے بچھا رہے ہیں تو یہ وزیراعظم شہباز شریف کی، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اور ہر پاکستانی کی عزت ہے۔ پاکستان کے لیے 2025 کامیابیوں کا سال ثابت ہوا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں مسلح افواج نے فتح کے جھنڈے گاڑے۔ پاکستان عالمی سطح پر سفارتی کامیابیاں سمیٹ رہا ہے۔ عالمی برادری تجارت اور دفاعی شعبے میں تعاون کی خواہش مند ہے۔ سٹاک مارکیٹ نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے۔ مضبوط معیشت سرمایہ کاروں کے اعتماد کا مظہر ہے۔ وزیر اطلاعات عطاءاللہ طارڑ اور رہنما مسلم لیگ نون زاہد خان کی نیوز کانفرنس۔ ملک دشمن کالعدم ٹی ٹی پی کا آخری دہشت گرد کے خاتمے تک تعاقب کریں گے۔ تحریک انصاف اور ٹی ٹی پی کا گٹھ جوڑ ہے۔ دہشت گردی کے پیچھے کالعدم ٹی ٹی پی اور تحریک انصاف ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی کے بارے میں پی ٹی آئی والوں کی زبانیں لڑکھڑا جاتی ہیں۔ وزیر اطلاعات عطاءاللہ طارڑ نے پریس کانفرنس میں ویڈیو نشر کر دی۔ کیا ٹی ٹی پی ایک دہشت گرد جماعت ہے؟ تحریک طالبان پاکستان ان میں بھی گروپس ہیں۔ آپ لوگ اتنا گھبراتے کیوں ہیں؟ میں آن ایئر کہتا ہوں کہ تحریک طالبان پاکستان ایک دہشت گرد جماعت ہے۔ اب سیکنڈ بات ہے کہ ان میں سے کو تائب ہو گئے ہیں، ان کو معاف کرو یا بات کرو۔ میں چاہ رہا ہوں آپ صاف مجھے کہیں ٹی ٹی پی ایک دہشت گرد جماعت ہے۔ ٹی ٹی پی میں جو لوگ ریاست کے خلاف ہیں وہ دہشت گرد۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے علاوہ ملک بھر میں ترقی ہو رہی ہے۔ 12 سال سے برسر اقتدار حکومت کی گورننس زبوں حالی کا شکار ہے۔ وزیر اطلاعات عطاءاللہ طارڑ نے پریس کانفرنس میں ویڈیو نشر کر دی۔ ادھر آپ کو تو پتہ ہے بس توڑنے کے لیے تو سب کچھ ہے کہ بنانے کے لیے کوئی بھی نہیں ہوتا ہے۔ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس پہ کیا وہ کر رہے ہیں۔ یہ 3 دن کے بعد 4 دن کے بعد یہ اکھاڑ رہے ہیں اور پھر پتہ نہیں یہ کیا کیا روڈ میں ڈال رہے ہیں۔ اسکول کھلانا لین ان کی وجہ پر بچے تکلیف بہت والدین کو تکلیف ہو سی۔ ہمارے صوبے کا بیڑا غرق کیا ان لوگوں نے، موت کے سوا کچھ نہیں مل جاتا ہے۔ بد انتظامی اور نااہلی کی یہ داستان کیپٹل سٹی پشاور۔ ایک بیچارے کارکن کو پکڑ کے آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کتنے ہاسپٹل بنائے ہیں، کنفرنٹ کرنا ہے، مجھے کنفرنٹ کریں۔ ہاسپٹلوں کے نام بتائیں جو آپ نے بنائے ہیں۔ ایل آر ایچ، حیات آباد میڈیکل کمپلیکس۔ لیڈی ریڈنگ بھی پہلے کا ہے۔ لیڈی ریڈنگ بھی پرانا۔ ترقیاتی کام رکے ہوئے ہیں، صفائی پہ کام ہونے والا ہے، پیپ شیپ و سنگ آلودہ ہے۔ شہر کی گلی گلی جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے۔ ہمارے جو وزیر اعلیٰ کا فوکس ہے ٹریولنگز پر ہے۔ امن و امان کی صورتحال انتہائی ابتر ہے، ٹارگٹ کلنگز بہت زیادہ ہیں۔ جواہرات کے شعبے کے لیے قومی پالیسی فریم ورک کی اصولی منظوری۔ پاکستان میں جواہرات اور دوسرے قیمتی پتھروں کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ ترجیحی بنیادوں پر ارضیاتی سروے سے ذخائر کے جغرافیائی اور مالیاتی تعین اور بین الاقوامی تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ وفاقی حکومت کے مجوزہ رمضان اور پچھلے رمضان پیکج کا جائزہ۔ متعلقہ اداروں اور وزارتوں کی گزشتہ رمضان پیکج کی شفافیت پر مستند آڈٹ رپورٹ پر ستائش۔ غریب اور سفید پوش عوام کی معاونت اور سماجی آسودگی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی امدادی رقوم کی فراہمی ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے کرنے کی خصوصی ہدایت۔
वजीर आजम से पाकिस्तान सुपर लीग में 2 नई टीमों की बिडिंग जीतने वाली फर्म्स के नुमाइंदों की मुलाकात। टीम सियालकोट और टीम हैदराबाद के नुमाइंदों को मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। कामयाब बिडिंग पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और मैनेजमेंट को भी खिराज तहसीन। नई टीमों की बोली का अमल टेलीविजन पर बराह रास्त नशर करना शफाफियत का मुंह बोलता सबूत है। नई टीमें पीएसएल के लिए ताज़ा हवा का झोंका साबित होंगी। ग्रास रूट सतह पर क्रिकेट के फरोग और नए टैलेंट को उभरने में मदद मिलेगी। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ। जद्दा में कल ओआईसी वज़ीर ख़ारजा काउंसिल का गैर मामूली इजलास होगा। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। सोमालिया की सूरत हाल और पेशरफ्त पर तबादला ख्याल होगा। नायब वज़ीर आज़म ओआईसी रुकन मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। पाकिस्तान चीन का बाहमी एहतराम, एतमाद और ताउन का रिश्ता दहाइयों पर मुहित है। बदलते हुए आलमी हालात के बावजूद दोनों मुल्कों की आहनी दोस्ती मजीद गहरी हुई। बुनियादी मफादात और अहम उमूर पर हमेशा एक मौक़िफ़ रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पीपल्स डेली को इंटरव्यू। वज़ीर आला पंजाब अवाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की फराहमी के लिए पुरआज़म। पंजाब कौमी सैटेलाइट से ब्रॉडबैंड हासिल करने वाला पहला सूबा होगा। सीनियर मुशीर सैनेटर अनूशा रहमान की ज़ेर सदारत इजलास। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के जरिए पंजाब में ब्रॉडबैंड फराहमी का फैसला। दूर दराज इलाकों, तालीमी इदारों और अस्पतालों को ब्रॉडबैंड की सहूलत दी जाएगी। 2 हफ्तों में डेमोस्ट्रेशन और 6 माह में दूर दराज इलाकों में ब्रॉडबैंड फराहमी का हदफ। पंजाब के सरकारी अस्पतालों के लिए अद्वियात की नई फहरिस्त मुरतब करने की हिदायत। अस्पतालों को जदीद चीनी साख्ता तिब्बी आलात की इजाजत। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। सेहत-ए-आमा के मंसूबों में पेशरफ्त का जायजा। सरकारी अस्पताल में हर मरीज को आलमी मयार की अद्वियात मिलेंगी। तमाम अस्पतालों की इंतजामिया कारकर्दगी, शफाफियत और हिफाजत के मयार को यकीनी बनाए। मरीम नवाज। कश्मीर शहीदों और गाजियों की सरजमीन। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून को मजीद मजबूत और फाल बना रहे हैं। जौक दर जौक लोग मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं। जब भी मुस्लिम लीग नून का दौर आता है, मुल्क और आज़ाद कश्मीर में तरक्याती मंसूबों के जाल बिछ जाते हैं। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की इस्लामाबाद में शमूलियती तकरीब से खिताब। दिसंबर 2025 के दौरान तरसीलात ज़र का हजम 3.6 अरब डॉलर रिकॉर्ड। शरह नमो के लिहाज से तरसीलात ज़र में सालाना 16.5% और माहाना बुनियाद पर 12.6% इजाफा। माली साल की पहली शशमाही में 19.7 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल। गुज़िश्ता साल मौसूल होने वाले 17.8 अरब डॉलर के मुकाबले में 10.6% ज्यादा हैं। स्टेट बैंक आदाद-ओ-शुमार। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी और मुत्तहिदा अरब अमारात के डेमाक ग्रुप के दरमियान कौमी टोकनाइजेशन एजेंडे पर इजलास। रियल स्टेट, सरकारी असासों और मुस्तकबिल के कर्जजाती आलात की टोकनाइजेशन को मुनज़्ज़म रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत फरोग देने पर तबादला ख्याल। इजलास की सदारत पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन बिलाल बिन साकिब ने की। मकबूजा कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक मुसलसल तीसरे जुमे नजरबंद। काबिज इंतजामिया ने नमाज जुमा अदा नहीं करने दी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय ओछे हथकंडों का सिलसिला तेज, मुहासिरे और तलाशी की कार्रवाइयां जारी। मकबूजा इलाके में कश्मीरियों की जद्दोजहद दबाने के लिए जालिमाना कवानीन का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का बिला जवाज गिरफ्तारियों पर इजहार तशवीश। अफगान तालिबान रजीम के दौर में गिरफ्तारियों और मावराए अदालत हलाकतों का खौफनाक सिलसिला जारी। अक़वाम मुत्तहिदा ह्यूमन राइट्स और हश्द सुद ने अफगान तालिबान इंटेलिजेंस के मुनज़्ज़म कत्लेआम में मुलविस होने का पर्दा चाक कर दिया। 2025 के दौरान 123 साबिक फौजी एहलकार कत्ल, जबकि 131 अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। साबिक अफगान कमांडर को 24 दिसंबर 2025 को तेहरान में फायरिंग करके कत्ल किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट। भारत को सस्ता तेल महंगा पड़ गया, 500% अमरीकी टैरिफ का खतरा। मोदी की रूस से कुर्बत सिफारती शिकस्त में तब्दील। अमरीका ने 500% तक टैरिफ बढ़ाने का शिकंजा तैयार कर लिया। गुज़िश्ता साल ट्रंप ने भारतीय दरामदात पर 25% टैरिफ आयद किया और रूसी तेल खरीदने पर इजाफी 25% जुर्माना लगाया, जिससे बाज़ मसनूआत पर ड्यूटियां 50% तक जा पहुंची थी।
इंडिया टुडे। कौमी सलामती और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमेरिका किसी भी मुल्क में कार्रवाई कर सकता है। फौजी कार्रवाई का इख्तियार मेरे पास है, इन्हें बैनुल अक़वामी कवानीन नहीं रोक सकते। ताकतवर इक़दामात और फौजी कार्रवाइयाँ अमेरिका के आलमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में मददगार हैं। ताकत के इस्तेमाल से आलमी सतह पर अपने मुल्क के मफादात को मजबूत किया जा सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप का न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी, 5 बच्चों समेत 14 फलस्तीनी शहीद, मुताद्दिद जख्मी। अल-मवासी में बेघर अफराद के खैमों पर इसराइली हमले में 4 फलस्तीनी शहीद। गजा शहर में 4 अफराद शहीद। इसराइल की वस्ती गजा पर भी बमबारी। जबालिया में इसराइली फायरिंग से 11 साला फलस्तीनी बच्ची शहीद। जंगबंदी मुआहिदे के बाद 11 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में अब तक 425 फलस्तीनी शहीद, 1206 जख्मी हुए। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा T20 मैच बारिश की नजर। दंबोला में मुसलसल बारिश के बायस टॉस भी न हो सका। एम्पायर्स ने मौसम की सूरत हाल देखकर मैच मनसूख करने का ऐलान किया। सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बरतरी हासिल। तीसरा और फैसला कुन मैच इतवार को दंबोला में ही खेला जाएगा। सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी क्रिकेट टीम भारत नहीं भेजेंगे। बांग्लादेश डट गया, भारत में खेल के लिए माहौल महफूज नहीं। खिलाड़ियों की सिक्योरिटी और मुल्की वकार पर समझौता नहीं करेंगे। उम्मीद है ICC हमारे मौक़िफ़ को गैर जानिबदारी से सुनेगा। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर डॉक्टर आसिफ नजरल। बिग बैश क्रिकेट लीग होबार्ट हेरिकेन्स की एडिलेड स्ट्राइकर्स को 37 रन से शिकस्त। होबार्ट हेरिकेन्स ने 6 विकेटों पर 178 रन बनाए। एडिलेड स्ट्राइकर्स की टीम 9 विकेटों पर 141 रन बना सकी। लियाम स्कॉट की 91 रन की इनिंग्स भी टीम के काम न आई। बिग बैश लीग PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज, घुड़सवार उस्मान खान इंटरनेशनल रैंकिंग में टॉप पोजीशन पर आ गए। इंटरनेशनल इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन के मिडल ईस्ट और अफ्रीका जोन की रैंकिंग जारी। 2019 से 2021 तक नंबर 1 पोजीशन पर रहने वाले उस्मान खान दोबारा सरे फहरिस्त। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं सलमा कौसर। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए PTV न्यूज के साथ। निगाहे इश्क़ो मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही त्वाहा। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। खबरनामे के आगाज में आपको बताते हैं, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के मारूफ कारोबारी सजवानी ग्रुप के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वफ़द से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान एतमाद और एहतराम पर मबनी दरीना बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मुअस्सर, मुआशी ताउन और सरमायाकारी की समत बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के हालिया दौरे पाकिस्तान ने दोनों मुल्कों की शराकतदारी को मज़ीद तक़वियत दी है। वज़ीर आज़म ने इस अमर पर इत्मीनान का इज़हार किया कि हालिया आला सतह रवाबित और तबादलों से पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के निजी शोबे और सरमायाकारों के बाहमी एतमाद में इजाफा हुआ है और बाहमी ताउन के फरोग के लिए एक मजबूत बुनियाद मैसर आई है।
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल जदत, ब्लॉक चेन और दीगर उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ के शोबों में बिजनेस टू बिजनेस ताउन को खुसूसी अहमियत देती है। उन्होंने पाकिस्तान की डिजिटल मईशत में अमाराती सरमायाकारों की बढ़ती दिलचस्पी का खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात की सरमायाकारी, जद्दत, आलमी रवाबित और पाकिस्तान की अफरादी सलाहियत माशी तरक्की के लिए नहायत मुफीद शराकत दारी है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस एतमाद का इजहार किया कि दोनों मुल्कों की सियासी क़यादत की मजबूत हिमायत के साथ निजी शोबे के इश्तराक में इजाफा पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के इक्तिसादी ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाएगा। सजवानी ग्रुप के वफ़द ने पाकिस्तान में पुरतपाक इस्तकबाल और मेज़बानी पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। वफ़द ने पाकिस्तान में सरमायाकारी और माशी शराकत दारी के मौक़े पर मज़ीद ताउन के आज़म का इआदा किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने वफ़द के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क के दूर दराज इलाकों में बिजली की बिलाताअत्तुल फराहमी के लिए सोलराइजेशन और बिजली के शोबे में जारी इस्लाहात के हवाले से आला सतह जायजा इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि ज़्यादा खसारे के हामिल बिजली के फीडर्स कम्यूनिटी और सूबाई हुकूमतों के ताउन से शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएँ। इस इकदाम से खसारे में चलने वाले फीडर्स के नुकसानात में कमी होगी और इन इलाकों में बिजली मुसलसल मुयस्सर आएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पेस्को और कैस्को के ज़्यादा नुकसान में चलने वाले फीडर्स में फुल-फोर पायलट प्रोजेक्ट्स का इजरा किया जाए। पायलट प्रोजेक्ट्स को कामयाब बनाने के लिए इलाके के मुंतखब नुमाइंदों से मुशावरत और कम्यूनिटी की शिरकत यकीनी बनाई जाए। इजलास को पेस्को और कैस्को के खसारे में चलने वाले फीडर्स की शमसी तवानाई पर मुंतकली के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि ऐसे फीडर्स की शमसी तवानाई पर मुंतकली से मुकामी आबादी के लिए एक माहौल दोस्त, कम लागत और पायदार माइक्रो ग्रिड बन जाएगा। मुकामी आबादी, सूबाई और वफाकी हुकूमतें इस मंसूबे में शराकतदार होंगी। इजलास को बताया गया कि इस मंसूबे से न सिर्फ कम लागत बिजली पैदा होगी बल्कि मुस्तकबिल में बिजली की तकसीमकार कंपनियों के खसारे में नुमाया कमी होगी। मंसूबे की उसूली मंजूरी देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में पायलट प्रोजेक्ट पर फौरन काम शुरू किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी हुकूमत के मुजव्वज़ा रमज़ान और गुज़िश्ता साल रमज़ान पैकेज की थर्ड पार्टी वैलिडेशन पर जायज़ा इजलास इस्लामाबाद में हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम मुतल्लिक़ा इदारों और वज़ारतों की गुज़िश्ता साल रमज़ान पैकेज की शफाफियत पर मुस्तनद ऑडिट इदारे की तरफ से रिपोर्ट की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पिछले साल से वफाकी हुकूमत ने गरीब अवाम को रमज़ान पैकेज की बदौलत अर्जा निर्खों पर अशिया खुरोनोश की फराहमी के लिए शफाफ निज़ाम तरतीब दिया है। मुल्क में कई दहाइयों से जारी यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए माली बेज़ाब्तगियों, बदनज़मी और गरीबों के इस्तेहसाल का राइज निज़ाम हुकूमत ने शफाफ निज़ाम में तब्दील कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम मुतल्लिक़ा इदारों को आने वाले रमज़ान के लिए पिछले साल से भी ज़्यादा मौसर पैकेज और सिफारिशात मुरतब करने की खुसूसी हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स में बदउनवानी की वजह से मुस्तहिक़ अफराद अपने हक़ से महरूम थे। गरीब और सफ़ेदपोश अवाम की माली मुआवनत और समाजी आसूदगी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म ने खुसूसी हिदायत की कि गरबा में रमज़ान पैकेज की इमदादी रकूम की फराहमी डिजिटल वॉलेट्स के जरिए ही की जाए ताकि अवाम की इज्जत व तकरीम मजरू न हो। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि अवाम को इमदादी रकूम की डिजिटल वॉलेट्स के जरिए फराहमी कैशलेस मईशत के हुसूल के लिए भी संगे मील साबित होगी। स्टेट बैंक की रमज़ान पैकेज की तकसीम में शमूलियत से कैशलेस इकानमी को फ़रोग मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि तमाम मुतल्लिक़ा वज़ारतें और इदारे इस बात को यकीनी बनाए कि इमदादी रकूम में गुरबा के दायराकार और शमूलियत को मुमकिन हद तक वसी किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मौसर निगरानी के लिए डिजिटल डैशबोर्ड और मुनज़्ज़म मॉनिटरिंग का निज़ाम वज़ा किया जाए। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि पिछले साल रमज़ान पैकेज की थर्ड पार्टी वैलिडेशन में आलमी शोहरत याफ्ता और मुस्तनद ऑडिट फर्म ने हुकूमती पैकेज को मौसर और शफाफ करार दिया। इजलास को बताया गया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट निज़ाम राइज किया जा रहा है, जिसके तहत मुस्तहिक अफराद में मुफ्त सिम्स तकसीम की जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे में दहशत गर्दी करने वालों की मजम्मत करने के बजाय दहशत गर्दों का सियासी विंग बन चुकी है, इनके साथ मुज़ाकरात की बातें करती है। 12 साल से बरसर इक़्तिदार तहरीक इंतशार सूबे में अवाम की तरक्की और खुशहाली के मंसूबों के बजाय मुल्क में मुहिम जोई पर तुली है। वज़ीर इत्तलात ने वीडियोज़ भी चला दी। तफसील के लिए रिपोर्ट देखते हैं। टीटीपी एक दहशतगर्द जमात है। टीटीपी में जो लोग रियासत के खिलाफ हैं वो दहशतगर्द। तरक्याती काम रुके हुए। हमारे जो वज़ीर आला का फोकस है ट्रैवलिंग्स पर है। अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की वजह से लोग शहीद हो रहे हैं, लेकिन तहरीक इंतशार की हुकूमत ने दहशतगर्दों के खिलाफ कोई भी लाएअमल नहीं बनाया। कालादम टीटीपी के बारे में पीटीआई वालों की ज़बानें लड़खड़ा जाती हैं। पीटीआई वाले दहशतगर्दों के लिए नर्म गोशा रखते हैं, दहशतगर्द हमलों की मजम्मत भी नहीं करते। क्या टीटीपी एक दहशतगर्द जमात है?
तहरीके तालिबान पाकिस्तान? इनमें भी ग्रुप्स आप लोग इतना घबराते क्यों हैं? मैं ऑन एयर कहता हूं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान एक दहशतगर्द जमात है। अब सेकंड बात है कि इनमें से को ताइब हो गए, उनको माफ करो या बात करो। मैं चाह रहा हूं आप साफ मुझे कहें टीटीपी एक दहशतगर्द जमात है। टीटीपी में जो लोग रियासत के खिलाफ हैं वो दहशतगर्द। वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अलावा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तरक्की हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से बरसरे इक़्तिदार हुकूमत की गवर्नेंस ज़बूहाली का शिकार है। सेहत समेत तालीम और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए कोई इक़दामात नहीं लिए गए। सूबे के अवाम सरापाए एहतजाज हैं। इधर आपको तो पता है, बस तोड़ने के लिए तो सब कुछ है कि बनाने के लिए कोई भी नहीं होता है। कोई समझ नहीं आ रही कि इस पे क्या वो कर रहे हैं। ये 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद ये उखाड़ रहे हैं और फिर पता नहीं ये क्या क्या रोड में डाल रहे हैं। स्कूल खुलाना लेन उनकी वजह कोई बच्चे तकलीफ बहुत है उनको तकलीफ हो सी। हमारे सूबे का बेड़ा गर्क किया इन लोगों ने, मौत के सिवा कुछ नहीं मिल जाता है। बदइंतजामी और नाअहली की ये दास्तान कैपिटल सिटी पेशावर। तरक्याती काम रुके हुए हैं, सफाई पे काम होने वाला है, पैप शेप हो संगलूदा है। शहर की गली गली जो है वो टूटी हुई है। हमारे जो वज़ीर आला का फोकस है ट्रैवलिंग्स पर है। होटलों के नाम बताएं जो आपने बनाए। LRH, हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स। लेडी रीडिंग भी पहले का है, लेडी रीडिंग भी पुराना। अताउल्लाह तारण ने कहा कि आज तक नहीं देखा कि एक सूबे का वजीर आला लाओ लश्कर समेत दूसरे सूबों की हुकूमतों के खिलाफ तहरीक चलाए। PTI का मकसद सिर्फ और सिर्फ इंतशार है और कुछ नहीं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारण ने कहा है कि रियासत मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। तहरीक इंतशार कलअदम TTP का सियासी विंग है। PTI के तर्जुमान दहशतगर्दों के बारे में बात करने से घबराते हैं। मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार दहशतगर्दों को वापस लाने और पनाह देने वाले हैं। तफसील फाहद जावेद से। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारण ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की अवाम और इदारों ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार दहशतगर्दों के लिए सहूलतकारी करते हुए उन्हें वापस लाने और पनाह देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ कल अदम TTP का सियासी विंग बन चुकी है। हमारा अज़म है कि दहशतगर्दी का ताकुब करते हुए इसका खात्मा करेंगे। ये दहशतगर्दों से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करते हैं, ये उनकी सहूलत कारी करते हैं, ये उनको पनाह गाहें देते हैं, ये उनको वापस लेकर आते हैं और बसाते हैं। मुझे कोई आर नहीं कहने में कि PTI TTP का सियासी विंग है और यही वजह है कि इनके तर्जुमान भी TTP के खिलाफ बात करने से घबराते हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में तंग नज़र और बुज़दिल लोग इक़्तिदार में हैं। इन लोगों का किरदार ख़वातीन को ताने देना और इखलाकी दिवालियापन है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लाहौर के दौरे में शुगदाबाजी की बजाय तरक्याती निज़ाम का जायजा लेते। काश आप एक पूरा किताबचा प्रेजेंटेशन लेके जाते लाहौर कि मैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हूँ सोहेल अफरीदी, ये मेरा विजन है अगले साल के लिए। ये मैं 2 IT यूनिवर्सिटीज बना रहा हूँ, एक पेशावर में बनाऊंगा, एक साउथ KP में बनाऊंगा। ये मैं PKLI से सीखने आया हूँ कि मैंने पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट की एक फिल्टर हॉस्पिटल मैंने पेशावर में बनाना है। ये मैं देखने आया हूँ कि पंजाब IT बोर्ड कैसे काम करता है। ये मैं देखने आया हूँ कि आपने ये ग्रीन बसेस कैसे चलाई हैं। फोरेंसिक लैब शहबाज शरीफ साहब ने इस दौर में बनाया था, वो कैसे बनाया है। जो सेफ सिटी के कैमरास लगाए हैं पेशावर में मैं नहीं लगा सका। मैं चाहता हूँ कि मैं देखूं कि ये क्या मॉडल है जिसको शहबाज शरीफ साहब ने बनाया और मरीम नवाज शरीफ साहब आगे बढ़ा रही हैं। एक सवाल के जवाब पर वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारण ने कहा कि गवर्नर राज आईनी ऑप्शन है, ताहम इस बारे में अभी बात करना कबल अज़ वक्त है। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने के लिए पुरअज़म है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जाहिद खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत में है। इन लोगों ने अवाम के मसाइल पर तवज्जो देने की बजाय सियासी मफादात को मुकद्दम समझा और महाज आराई का रास्ता इख्तियार करते हुए मसाइल में इजाफा किया। उन्होंने कहा कि वफाकी वजीर एहसन इकबाल की सरबराही में कायम कमेटी मुख्तलिफ शोबों में ताउन में इजाफे के लिए जल्द पेशावर का दौरा करेगी। फाज जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में जवाहरात और कीमती पत्थरों के ज़खायर, शोबे की इस्लाहात, बरामदात में इजाफे और जदीद टेक्नोलॉजी के नफाज पर आला सतह इजलास इस्लामाबाद में हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने जवाहरात और कीमती पत्थरों के शोबे की इस्लाहात और इसे बैनुल-अक़वामी तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क की उसूली मंजूरी दे दी। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने रवां बरस पॉलिसी फ्रेमवर्क में तफवीज़ करदा इक़दामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में जवाहरात और कीमती पत्थरों के वसीअ ज़खायर मौजूद हैं।
तरजीही बुनियादों पर अर्जियाती सर्वे से ज़खायर की जोग्राफिया और मालियत का तयन किया जाए। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि इस अमर में तमाम मुतल्लिक़ा इदारों, सूबाई हुकूमतों और स्टेक होल्डर्स की मुशावरत यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म का कहना था कि आलमी मयार की लेबॉर्ट्रीज़ और सर्टिफिकेशन के नफाज के लिए फौरी इक़दाम अमल में लाए जाएँ। पॉलिसी फ्रेमवर्क में बैरूनी सरमायाकारी के लिए मौजूद माहौल की फराहमी को अव्वलीन तरजीह दी जाए। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि रवां साल मुल्क में जेम स्टोन से मुतल्लिक़ा 2 मिसाली सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस का क़याम अमल में लाया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में जेम स्टोन्स के ज़खायर के मुकाबले में बरामदात ना होने के बराबर हैं। निजी कंपनियां बिलखुसूस नौजवान एंटरप्रेन्योर्स की इस शोबे में हौसला अफजाई की जाए। पाकिस्तान कीमती पत्थर दुनिया भर में अपने मयार के हवाले से मकबूल हैं। स्मगलिंग के सद्देबाब और कानूनी तरीके से बरामद से अरबों डॉलर के ज़र मुबादला का हुसूल यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन की मदद से पॉलिसी फ्रेमवर्क पर अमल दरामद में हायल रुकावटों को दूर किया जाए। वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़ज़ाना को शोबे की तरक्की के लिए मौजूदा माली वसाइल की फौरी फराहमी की भी हिदायत की। इजलास को पाकिस्तान में कीमती पत्थरों की इस्तेदाद, इलाकाई तकाबली जायजे, बरामदात में इजाफे के लिए दरकार इक़दामात और कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क के खदुखाल और नफाज की मुअय्यना मुद्दत के अहदाफ पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया कि पाकिस्तान में जवाहरात और कीमती पत्थरों के वसी ज़खायर मौजूद हैं, जिसका महतात तखमीना 450 अरब डॉलर है। पाकिस्तान में इस वक्त 5000 से ज़ायद कंपनियां और कारोबार इस शोबे से मुंसलिक हैं, जो पाकिस्तान में पाए जाने वाले 30 से ज़ायद कीमती पत्थरों की प्रोसेसिंग के हवाले से काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में पाए जाने वाले कीमती पत्थरों में ज़मुर्द, ज़बरजद, याकूत, पुखराज और नीलगू ज़बरजद के ज़खायर सरे फहरिस्त हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से पाकिस्तान सुपर लीग में 2 नई टीमों की बिडिंग जीतने वाली फर्म्स के नुमाइंदगान और जेड डेवलपर्स के हमजा मजीद और टीम हैदराबाद FKS के फवाद सरवर ने मुलाकात की है। वज़ीर आज़म ने टीम सियालकोट और टीम हैदराबाद के नुमाइंदगान को मुबारकबाद देते हुए कहा कि PSL की नई टीमों के लिए बोली का अमल टेलीविजन पर बराह रास्त नशर किया गया, जो कि इसकी शफाफियत का मुंह बोलता सबूत है। 2 नई टीमों की शमूलियत से ग्रास रूट की सतह पर क्रिकेट के फरोग और नए टैलेंट को उभरने में मदद मिलेगी। ये 2 नई टीमें PSL के लिए ताज़ा हवा का एक झोंका साबित होंगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि यह अमर इंतहाई खुशाइंद है कि टीमों की बिडिंग के लिए बैनुल-अक़वामी फर्म सामने आए। इस अमल से पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी को फरोग मिला है। उन्होंने कहा कि समंदर पार मुकीम पाकिस्तानी हमेशा से मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करते नजर आए हैं। PSL की नई टीमों की बिडिंग के अमल में जिस तरह से मुल्की और आलमी फर्म्स ने दिलचस्पी दिखाई से बैनुल-अक़वामी सतह पर PSL की मकबूलियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार कल जद्दा में होने वाली OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास में शिरकत के लिए आज रात सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म OIC रुकन मुल्कों के वज़राए ख़ारजा से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। OIC सेक्रेटेरिएट के मुताबिक वज़राए ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास में सोमालिया की सूरत हाल में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ये इजलास इसराइल की जानिब से सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करते हुए नाम नेहाद सोमाली लैंड को आज़ाद रियासत तस्लीम करने के इक़दाम के बाद हो रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा है कि गुज़िश्ता 75 बरसों में पाकिस्तान और चीन ने बाहमी एहतराम, एतमाद और ताउन की बुनियाद पर अपनी आहनी दोस्ती को मज़ीद मजबूत किया है। पीपल्स डेली ऑनलाइन को इंटरव्यू में नायब वज़ीर आज़म ने चीन के तरक्याती विजन और सदर शी जिनपिंग के 4 आलमी इनिशिएटिव्स को आलमी चैलेंजेस के हल के लिए अहम करार दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि ताइवान चीन का नाकाबिले तनसीख हिस्सा है। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर मजबूती से कायम है और खत्ते में अमन, मुकालमे और ताउन को नागुज़ीर समझता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन हमा मौसमी स्ट्रेटेजिक ताउन के शराकतदार हैं और पाकिस्तान ने हमेशा चीन के बुनियादी मफादात से मुतालिका अमूर पर उसकी गैर मुतज़लज़ल हिमायत की है। इसाक डार का कहना था कि खत्ते के मुल्कों को एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में किसी किस्म की मुदाखलत से गुरेज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुकालमे और ताउन को फ़रोग देना, तरक्की को मरकजियत देना और एक मुस्तहकम माहौल तश्कील देना नागुज़ीर है, जो कि एशिया और दुनिया में पायदार अमन, मुश्तरका तरक्की और खुशहाली के लिए साजगार बुनियाद फराहम करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की सदारत में इक़्तिसादी इस्लाहात से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें मुल्की मईशत और तरक्की में प्लानिंग कमीशन के कलीदी किरदार को उजागर किया गया। नायब वज़ीर आज़म ने सरमायाकारी और स्ट्रेटेजिक पॉलिसी की तरजीहात की निगरानी के लिए प्लानिंग कमीशन को मज़ीद बाख्तियार बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम अहल इक़्तिसादी फैसलों को कौमी इक़्तिसादी हिकमत अमली के साथ हम आहंग होना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार की सदारत में मुल्क में चीनी की कीमत और दस्तियाबी का जायज़ा लेने के लिए कायमा कमेटी का इजलास हुआ। नायब वज़ीर आज़म ने 2025-26 के लिए चीनी की पैदावार, फराहमी और मौजूदा कीमतों का जायज़ा लिया। कमेटी ने मुख्तलिफ मराहिल में चीनी की कीमतों में कमी के रुझान पर इत्मीनान का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म ने सूबाई महकमों को हिदायत की कि काश्तकारों के लिए गन्ने की मुनासिब और बर वक्त कीमत को यकीनी बनाया जाए।
पंजाब में हर जिंदगी की हिफाजत के लिए वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें हेल्थ प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि अस्पतालों में हर मरीज की दवा उसके हाथ में बर वक्त होगी। उन्होंने कहा कि 80 अरब रुपए मुफ्त अद्वियात के लिए दे रहे हैं, अब अद्वियात का ना मिलना नाकाबिल फ़हम है। वज़ीर आला ने कहा कि अब आवाम के पैसे और वक्त ज़ाया नहीं होगा, ना अहल और कामचोरों को घर जाना होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब के सरकारी अस्पताल में हर मरीज को अब आलमी मयार की जदीद तरीन अद्वियात मिलेंगी। वज़ीर आला पंजाब ने अस्पताल में मौजूद सिक्योरिटी कंपनीज और सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ अवामी शिकायत का सख्त नोटिस लिया। इजलास में पंजाब के सरकारी अस्पतालों को जदीद तिबी आलात से लैस करने के लिए चीनी साख्ता तिबी आलात की इजाजत पर इत्तफाक और अस्पतालों के सिक्योरिटी गार्ड, वार्ड बॉय, नर्सेज, फार्मेसी स्टाफ को बॉडी कैम लगाने का उसूली फैसला किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि हर सरकारी अस्पताल में रोजाना 9 बजे तक मुकम्मल स्टैम्प क्लिंग की जाएगी और पंजाब में MS पूल कायम करने और सिर्फ परफॉर्मेंस की बुनियाद पर तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला किया गया है। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में काबीना कमेटी बरए सरकारी मिल्कियती इदारे का इजलास हुआ, जिसमें माली साल 2024-25 की सालाना जामे कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की गई। सरकारी इदारों की मजमूई आमदन 12.4 खरब रुपए रही, जबकि शोबे को मजमूई तौर पर 122.9 अरब रुपए का नुकसान हुआ। रिपोर्ट में बताया गया कि ज़्यादातर नुकसान ट्रांसपोर्ट और बिजली की तकसीम के शोबे में मरकूज हैं, जबकि हुकूमती मावनत बढ़कर 2078 अरब रुपए हो गई। सरकारी इदारों का मजमूई कर्ज 9.57 खरब रुपए और गैर फंडेड पेंशन वाजिबात तकरीबन 2 खरब रुपए रिकॉर्ड किए गए। कमेटी ने ऑडिट्स, गवर्नेंस, इस्लाहात और IFRS पर मबनी रिपोर्टिंग पर जोर देते हुए रिपोर्ट की इशाअत और मुतादिद इदारों में आज़ाद डायरेक्टर्स की तकर्री की मंजूरी दी। वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीन मकाम ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम पाक फौज के शाना बशाना खड़े होकर मुल्क के दिफा में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि मसला कश्मीर के हल के लिए हर सतह पर जिदोजहद जारी रखी जाएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद उस्मान। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मुकाम ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करने वालों को खुशामदीद कहते हुए कहा कि स्मानी के इलाके में मुस्लिम लीग नून एक मजबूत और नाकाबिले शिकस्त कुव्वत बन चुकी है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में कश्मीर में सबसे बड़ी तब्दीली पाकिस्तानियत के रिश्ते का मजीद मजबूत होना है। पूरे कश्मीर में तो हर एक ने इतराफ किया कि पी मिलन के दौर में हुई। बहुत खुशी मुझे हो रही थी कि जिस जगह जा रहा था, जिस सड़क का पूछ रहा था, जिस इदारे का पूछ रहा था, तो हर एक की तरफ से ये बात आई कि पी मिलन के दौर में हुई। हमारे कायद नवाज शरीफ साहब ने आपके तरक्याती फंड डबल करा दिए। वफाकी वजीर का कहना था कि कश्मीरी अवाम पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत रखते हैं। मसला कश्मीर के हल के लिए हर सतह पर जद्दोजहद जारी रखी जाएगी। अमीर मुकाम ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने मार्का हक में दुश्मन को शिकस्त देकर तारीखी फतह हासिल की और पाकिस्तान को आलमी सतह पर पजीराई मिली। शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में और मैं कहूँगा वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की क़यादत और लीडरशिप में जिस तरह हमारे फोर्सेस ने मुकाबला किया, दुनिया की तारीख में एक नया बाब रकम कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करने वाले चौधरी मोहम्मद रजाक ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से इलाके में तरक्की और खुशहाली का दौरा होगा। तकरीब से दूसरे मुकर्रीन ने भी खिताब किया। मोहम्मद उस्मान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में दरमियानी से शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में शदीद सर्द रहा। जिवानी में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लह -14, स्कर्दू -12, अस्सौर -11, गोपिस -9, हुंजा कलात -8, गिलगित बिगरोट और कलाम में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क के चंद दीगर शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ ऐसे रही। इस्लामाबाद 1, लाहौर 5, कराची 9, पेशावर 0, कोयटा -3, मुल्तान में कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। गिलगित -6, स्कर्दू -12, मुजफ्फराबाद 3, जबकि श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, वफाकी वजीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मुकाम ने कहा है खैबर पख्तूनख्वा बदतरीन माली और इंतजामी बहरानों में घिरा हुआ है, लेकिन वजीर आला गैर ज़रूरी दौरों में मसरूफ हैं। वफाकी वजीर ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के कराची दौरे पर रद्दअमल देते हुए कहा कि सूबे के अस्पतालों में अद्वियात नहीं, दहशतगर्दी उरूज पर है, मगर वजीर आला को गवर्नेंस और अमन व अमान से कोई सरोकार नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती रेट कमजोर, अमन व अमान की सूरत तशवीशनाक हद तक बढ़ चुकी है। यूनिवर्सिटियाँ माली बहरान का शिकार, असातिज़ा और अमला तनख्वाहों से महरूम हैं। आवाम बुनियादी सहूलियात के लिए तरस रहे हैं। वजीर आला के कभी पंजाब कभी सिंध के दौरे, जबकि अपने सूबे को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वजीर आला की तरजीहात अवामी मसाइल का हल नहीं बल्कि सियासी नुमाइशी सरगर्मियाँ हैं। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा को मजीद तजर्बात की नहीं, फौरी गवर्नेंस, वाज़ेह समत और मजबूत क़यादत की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा है कि गुज़िश्ता 2.5 साल में की जाने वाली मेहनत के समरात मिलना शुरू हो गए हैं। हुकूमती इक़दामात से पॉलिसी रेट में नुमाया कमी आई। वो कराची में पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान जॉइंट बिजनेस नेटवर्किंग के मौके पर खिताब कर रहे थे। तफसील जानते हैं मोहम्मद जुबैरुद्दीन से। पाम ऑयल नेटवर्किंग सेशन से खिताब में वफाकी वजीर बराए तिजारत जाम कमाल खान ने कहा कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया मुस्लिम ममालिक में दो बड़े अहम मुल्क हैं, जबकि इनके दरमियान सिफारती, तिजारती और माशी ताल्लुकात में इजाफे से दोनों ममालिक की अवाम बराह रास्त मुस्तफीज हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता कलील अरसे में कामयाबी से माशी और सिफारती मैदान में कामयाबियाँ हासिल की हैं, जिसका नतीजा है कि बराह रास्त सरमायाकारी की गर्ज से बड़े वफूद का तबादला माशी हब कराची में हो रहा है। Pakistan has done its work in really creating a very good foreign diplomacy and international relationship with all countries. We have seen it expanding to the ASEAN countries, to the Gulf countries, opening up new trade relationships with US, with Europe, with Central Asian countries. And this 1.5 years time, we have seen many presidents and prime ministers coming to Pakistan. इंडोनेशिया की नायब तिजारती वजीर दिया रोरो ईस्ती ने कहा कि पाकिस्तान से ज़राई अजनास टेक्सटाइल के शोबे में दरामदात बढ़ाना चाहते हैं, जबकि पाम ऑयल में पाकिस्तान हमारा बड़ा बरामद कुनंदा है। नेटवर्किंग सेशन से पाकिस्तान में इंडोनेशिया के सफीर चंद्रा सुकोजो और दीगर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए निजी शोबे के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग और ताजिरों के वफूद के तबादले पर जोर दिया। इस मौके पर दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के फरोग में कारकर्दगी दिखाने वालों में शील्ड्स भी दी गईं। नेटवर्किंग सेशन से कल पाकिस्तान और इंडोनेशिया के आला वफ्द के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग हुई, जिसकी सदारत वफाकी वजीर जाम कमाल खान और इंडोनेशिया की नायब वजीर ने की, जिसमें बाहमी तिजारत के फरोग के लिए मुताद्दिद तजावीज़ ज़ेर गौर आईं। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2026 की तैयारियों को मज़ीद मुअस्सर बनाने और आलमी सतह पर वसी शराकत को यकीनी बनाने के लिए बैरून मुमालिक तैनात पाकिस्तान के सफ़ीरों और हाई कमिश्नर्स के साथ एक ब्रीफिंग सेशन का इनेकाद किया। वफाकी वज़ीर ने सफ़ीरों और हाई कमिश्नर्स पर जोर दिया कि वो मेज़बान ममालिक में मारूफ माइनिंग कंपनियों, सरमायाकारों, मालियाती इदारों और मुतल्लिका सरकारी हुकाम के साथ फ़ाल रवाबित कायम करें, ताकि फोरम में वसी और मौसर बैनुल अक़वामी शिरकत को यकीनी बनाया जा सके। अफगान तालिबान रजीम के 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं, ताहम इस दौरान इंसानी हकूक़ की संगीन पामालियों, मावरे अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा, ह्यूमन राइट्स वॉच और मारूफ अफगान अखबार हश्र सुबह की रिपोर्ट्स ने अफगान तालिबान इंटेलिजेंस के मुनज़्ज़म कत्लेआम में मुलव्वस होने का इंकशाफ किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2025 के दौरान 123 साबिक अफगान फौजी एहलकार कत्ल हुए, जबकि 131 अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि एक साबिक अफगान कमांडर को 24 दिसंबर 2025 को तेहरान में फायरिंग करके कत्ल किया गया। हश्र सुबह के मुताबिक एक अफगान इंटेलिजेंस एहलकार ने एतराफ़ किया कि वो मुतादिद हमलों में मुलव्वस रहा, जिनमें साबिक फौजी एहलकार भी शामिल थे। अक़वाम मुत्तहिदा के अफगानिस्तान के बारे में इमदादी मिशन UNAMA ने तस्दीक की कि 2021 के बाद बिला जवाज़ गिरफ्तारियाँ, जबरी गुमशुदगियाँ और कत्ल मामूल बन चुके हैं, जबकि 2023 में तकरीबन 200 साबिक फौजियों को कत्ल किया गया। ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी इन मज़ालिम की तौसीक करते हुए आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि अफगान तालिबान रजीम के इंसानियत सोज इक़दामात पर फौरी और मौसर कार्रवाई की जाए।
मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंतजामिया ने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक को आज मुसलसल तीसरे जुमे श्रीनगर में घर में नजरबंद रखकर जामे मस्जिद में नमाज जुमा अदा नहीं करने दी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मीरवाइज ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी अपने बयान में इंतजामिया की कार्रवाई की मजम्मत करते हुए इसे इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। जामे मस्जिद के इमाम हई सैयद अहमद नक्शबंदी ने भी अपने खुतबे में मीरवाइज की बार बार नजरबंदी पर गम व गुस्से का इजहार करते हुए इसे मजहबी मामलात में सरीहन मुदाखलत करार दिया। उन्होंने कहा कि मीरवाइज पर बार बार पाबंदियों से लोगों के मजहबी जज्बात को शदीद ठेस पहुंचती है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारतीय फोर्सेस की तरफ से श्रीनगर और वादी कश्मीर के दीगर हिस्सों में जारी बिलाजवाज गिरफ्तारियों पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि भारत ने कश्मीरियों को डराने धमकाने के लिए ओछे हथकंडों का सिलसिला तेज कर दिया है। तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा कि मकबूजा इलाके में कश्मीरियों की जायज जद्दोजहद को दबाने के लिए जालिमाना कवानीन का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। काबिज फोर्सेस ने 26 जनवरी को भारतीय यौम जमहूरिया से कबल नाम नेहाद सिक्योरिटी इक़दामात की आड़ में मकबूजा इलाके में पाबंदियों, छापों और तलाशियों का सिलसिला तेज कर दिया है। फोर्सेस ने जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर, कुलगाम और दीगर अजला में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं, जबकि श्रीनगर जम्मू शाहराह पर भी इजाफी चौकियां कायम करके गाड़ियों, मुसाफिरों और राहगीरों की सख्त तलाशी ली जा रही है। और भारत को रूस से सस्ता तेल खरीदना महंगा पड़ता दिखाई दे रहा है। जहां अमेरिका की जानिब से भारतीय दरामदात पर 500% तक टैरिफ आयद किए जाने का खदशा है, मोदी हुकूमत की रूस से बढ़ती कुर्बत अब सिफारती शिकस्त में तब्दील होती नजर आ रही है। वाशिंगटन ने भारत पर तिजारती दबाव बढ़ाने के लिए सख्त इकदाम की तैयारी कर ली है। भारतीय जरीदे इंडिया टुडे के मुताबिक गुज़श्ता साल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय दरामदात पर 25% टैरिफ आयद किया, जबकि रूसी तेल खरीदने पर इजाफी 25% जुर्माना लगाया गया, जिसके नतीजे में बाज़ मसनूआत पर ड्यूटियां 50% तक पहुंच गई। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि दिसंबर 2025 में भारतीय चावल पर नया अमरीकी टैरिफ आयद करने की धमकी दी गई। माशी माहिरीन के मुताबिक अमरीका से मुज़ाकरात में तातुल, आलमी पाबंदियों के खदशे और बढ़ते तिजारती टैरिफ ने मोदी हुकूमत के माशी मॉडल को बेनकाब कर दिया है। माहिरीन का कहना है कि RSS के असर रसूख के तहत मोदी सरकार की तवज्जो भारत को माशी ताकत बनाने के बजाय हिंदुत्व रियासत की जानिब मरकूज है। न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की कौमी सलामती और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो किसी भी मुल्क में कार्रवाई करने के लिए आज़ाद हैं। अमरीकी सदर ने अपने मौक़िफ़ की वजाहत करते हुए कहा कि ताकतवर इक़दामात और फौजी कार्रवाइयाँ अमरीका के आलमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में मददगार हैं। उन्होंने ग्रीनलैंड और वेनेजुएला के मामलात की मिसालें देते हुए कहा कि अमरीकी ताकत के इस्तेमाल से वो आलमी सतह पर अपने मुल्क के मफादात को मजबूत कर सकते हैं। नाज़रीन, गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइल के वहशियाना हमलों के नतीजे में 5 बच्चों समेत 14 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक जनूबी गजा के इलाके अल-मवासी में बेघर अफराद के खैमों पर इसराइली हमले में 4 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा शहर के महल्ले जैतून में एक और इसराइली हमले में 4 अफराद शहीद हुए। इसराइल ने वस्ती गजा के इलाकों बरेदेज और नसीरात पर भी बमबारी की। एक और वाक़े में शिमाली गजा के इलाके जबालिया में इसराइली फायरिंग से 11 साल फ़लस्तीनी बच्ची शहीद हो गई। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक जंगबंदी मुआहदे के बाद 11 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में अब तक 425 फ़लस्तीनी शहीद और 1206 ज़ख्मी हो चुके हैं। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहनगी सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि उलमाए कराम मिंबर और महराब के जरिए मजहबी हम आहनगी, रवादारी, कौमी यकजहती, एहतराम इंसानियत और पैगाम पाकिस्तान के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार अदा करें। इत्तेहादी उम्मत कॉन्फ्रेंस की तफसील वकास भट्टी की रिपोर्ट में। बादशाही मस्जिद लाहौर में 23वीं दाई इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि उलमा कराम का मिशन हमेशा से अमन, मोहब्बत, अखुवत, इत्तेहाद, बैनुल मुस्लिमीन का फ़रोग़ और इस्तेहकाम पाकिस्तान रहा है। उलमा कराम ने मिंबर और मेहराब के जरिए मजहबी हम आहंगी, रवादारी, कौमी यकजहती और पैगाम पाकिस्तान के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार अदा करें। हमारे जो मजहबी पेशवा है वो अपना किरदार उस तरीके से अदा कर सके जो इस्लामी ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में उनका फर्ज बनता है। अफवाज पाकिस्तान आज भी मुल्क के दफा के लिए और मुल्क के बैरूनी अंदरूनी जो साजिशें उनको नाकाम करने के लिए कुर्बानियां दे रही है और ये हकीकत है, इसको तस्लीम करना चाहिए। अगर हमारा दफा मजबूत नहीं होगा तो फिर हमारा हाल भी उन ममालिक जैसा होगा जो आज दूसरों के रहम करम पर है। वफाकी वजीर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि मार्का हक में वजीर आजम ने पूरी कौम को एक रखा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़ियादत में अफवाज पाकिस्तान ने अजीम कारनामा सर अंजाम दिया। चेयरमैन मरकजी रूहत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद ने कहा कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पंजाब में आयमा मसाजिद के वक़ार को बुलंद करना और उनके लिए महाना एजाजिया की तकसीम काबिल तहसीन इक़दाम है। इस्लाम हमें सलामती का, वहदत का,
इत्तेहाद का दर्स देता है। और आज वही फलसफा अमन हमारी हुकूमत, हमारी इदारे और वही वहदत के पैगाम को लेकर पैगाम पाकिस्तान की सूरत में हर घर में आम की जा रही है। दीगर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि दाई इत्तेहाद उम्मत मौलाना डॉक्टर सैयद अब्दुल कादिर आज़ाद रूहानी शख्सियत के मालिक थे। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस 1964 में उन्हें तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराहों की इमामत का शर्फ हासिल हुआ। उन्होंने कहा कि आज आलम इस्लाम की मुश्किलात और मसाइल का हल उम्मत के इत्तेहाद और वादियत में है। वकास भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा है कि कराची की बंदरगाह से मुंसलिक पाकिस्तान रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। कराची में KPT के दफ्तर में इजलास की सदारत करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि 5 माह के अंदर पाकिस्तान रेलवे कराची पोर्ट से कार्गो हैंडलिंग में नुमाया इजाफा करेगी। इस मकसद के लिए KPT एरिया से रोजाना 4 रेलगाड़ियों की मनसूबाबंदी की जा रही है। चेयरमैन KPT रिटायर्ड एडमिरल शाहिद अहमद ने कहा कि भारी कार्गो से पाकिस्तान रेलवे को दोनों इदारों और कारोबारी बरादरी के बेहतरीन मफाद में भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। इससे कबल हनीफ अब्बासी ने कराची पोर्ट ट्रस्ट का दौरा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रेलवे के वसाइल के बेहतर इस्तेमाल, कारकर्दगी में इजाफे, लॉजिस्टिक्स लागत में कमी के लिए बाहिमी ताउन बढ़ाया जाए। वज़ीर ममलूकत खेलदास कोहिस्तानी ने कहा है कि मुल्क में छोटी सनतों, राइस मिल्स के मसाइल हल करेंगे। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है। मुल्क की मेशत मजबूत और महंगाई में नुमाया कमी हुई है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सियासत के बजाय रियासत को तरजीह दी। अब मुश्किल फैसलों के मरहले से निकल चुके हैं, मईशत दुरुस्त समत में जा रही है। राइस मिल्स एसोसिएशन की तकरीब से खिताब में वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को सरबलंद किया। आज अमेरिका समेत पूरी दुनिया के अहम ममालिक में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। भारत पूरी दुनिया में रुस्वा हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड से मुतालिक अहम इजलास वज़ीर आला ऑफिस में हुआ, जिसकी सदारत सीनियर मुशीर सेनेटर अनुशा रहमान ने की। इजलास में पंजाब भर में सैटेलाइट बीम के जरिए तेज़ तरीन ब्रॉडबैंड इंटरनेट की फराहमी पर तफसीली मुशावरत की गई। इजलास में फैसला किया गया कि जदीद सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को बरोकार लाते हुए पंजाब के दूर दराज इलाकों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सहूलत फराहम की जाएगी। तालीमी इदारों और अस्पतालों को तरजीह बुनियादों पर ब्रॉडबैंड से मुंसलिक किया जाएगा ताकि तालीम और सेहत के शोबों में डिजिटल सहूलियात को फ़रोग़ दिया जा सके। इस्लामाबाद में पेपर मलबरी के दरख्तों की कटाई और तलफी सिर्फ शजरकारी मुहिम नहीं बल्कि अवामी सेहत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से जुड़ा एक अहम फैसला है, जिसका मकसद पोलन की शिद्दत को कम करना और शहरियों को सांस और एलर्जी की बीमारियों से महफूज बनाना है। मज़ीद तफसील जानते हैं हुसैन रजा की इस रिपोर्ट में। पेपर मलबरी एक ऐसा दरख्त है जो तेजी से पोलन एलर्जी फैलाता है। हुकूमत ने फैसला किया है कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पेपर मलबरी के दरख्त काट कर फलदार और चीड़ के दरख्त लगाए जाएंगे ताकि दारुल हुकूमत की खूबसूरती महफूज और माहौलियात का तवाज़ुन बरकरार रहे। 8,700 पेपर मलबरी कटा है शकरपड़िया के इस एरिए से और यहाँ पे 18,200 समथिंग पौधे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, यानी एक दरख्त के साथ 3 दरख्त लगाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में पोलन का मसला अब महज मौसमी एलर्जी तक महदूद नहीं रहा। डॉक्टर्स के मुताबिक 1990 की दिहाई के बाद पोलन की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इस्लामाबाद में पोलन की शिद्दत बढ़ने से एलर्जी, नाक और आंखों की सोजिश, सांस की तकलीफ और अस्थमा के केसेस में वाज़े इजाफा देखा जा रहा है, खास तौर पर बच्चे और बुजुर्गों में। शहरियों का कहना है कि इस इकदाम से पोलन एलर्जी से महफूज रह सकते हैं और इस्लामाबाद का माहौल भी बेहतर होगा। मैं खुद इसका पेशेंट रह चुका हूँ, तो इसमें काफ़ी जो है मुश्किलात लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। जो दरख्त उतारे जा रहे हैं या रिमूव किए जा रहे हैं, ठीक है, उनको उनसे ज़्यादा रिप्लेस किया जाए। पोलन एलर्जी के बायस शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी और सर दर्द जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। पेपर मलबरी की मुकम्मल तल्फी और माहौल दोस्त दरख्तों की मुकम्मल अफजाइश से ही शहरियों की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है और मुस्तकबिल में पोलन एलर्जी के ख़तरे से बचा जा सकता है। हुसैन रज़ा, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब से अमरीकी बिजनेस लीडर्स के वफ़द ने लाहौर में मुलाकात की। इस दौरान सेहत, तालीम, माहौलियात, चाइल्ड लेबर, ज़राअत, इंडस्ट्री और ई मैकेनाइजेशन समेत
मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी वफ्द को वज़ीर आला मरीम नवाज के विजन पर जामे ब्रीफिंग दी गई। सीनियर सूबाई वज़ीर ने वफ्द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब का ई मोबिलिटी विजन माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट की जानिब इनकलाबी कदम है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर चाइल्ड और बॉन्डेड लेबर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज है। पंजाब में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल मौजूद है। अमरीकी वफ्द ने चाइल्ड और बॉन्डेड लेबर के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दाम को काबिल तहसीन करार दिया। अमरीकी वफ्द ने सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स की तारीफ करते हुए वज़ीर आला मरीम नवाज के इनकलाबी इक़दाम को सराहा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए काबीना डिवीजन का इजलास सिंध असम्बली कराची में सेनेटर राना महमूदुल हसन की सदारत में हुआ। इजलास में कराची में पानी की किल्लत का नोटिस लिया गया। कमेटी ने इस बात पर जोर दिया कि कराची में आबी मसाइल के हल के लिए 4 वाटर सप्लाई मंसूबा इंतहाई अहम है। मंसूबे पर पेशरफ्त की निगरानी के लिए हर 6 माह बाद जायजा इजलास मुनक्किद किया जाएगा। कमेटी में सिंध में जारी तरक्याती मंसूबों पर भी बातचीत की गई। नेस्पाक ने कमेटी को आगाह किया कि सिंध में 82 तरक्याती मंसूबे जारी हैं, जबकि बलोचिस्तान में 17 मंसूबे ज़ेर तकमील हैं। ओगरा ने कमेटी को ब्रीफिंग में बताया कि मुल्क भर में 12,000 पेट्रोल पंप्स को डिजिटल सिस्टम में लाने का मंसूबा है। खेलों की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा T20 मैच बारिश की नजर हो गया। दंबोला में मुसलसल बारिश के बायस टॉस भी मुमकिन न हो सका। अंपायर्स ने मौसम की सूरत हाल देखकर मैच मंसूख करने का ऐलान किया। सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। तीसरा और फैसलाकुन मैच इतवार को दंबोला में ही खेला जाएगा। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का कहना है कि नई टीमें पाकिस्तान सुपर लीग को मजबूत करेंगी और इसकी आलमी हैसियत बढ़ाएंगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि PSL की नई टीमों की नीलामी शानदार रही। रिकॉर्ड बोलियां, पुरजोश सरमायाकार और 2 नई फ्रेंचाइजीज हमारी फैमिली में शामिल हुई हैं। PSL में 2 महंगी तरीन टीमों की फरोख्त का नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। हैदराबाद और सियालकोट की शमूलियत के बाद PSL अब 8 टीमों पर मुश्तमिल होगी। FKS ने टीम हैदराबाद 175 करोड़ रुपए में खरीदी। ओजी डेवलपर्स ने 185 करोड़ रुपए में सियालकोट की टीम हासिल की। नीलामी के अमल में 9 सरमायाकारों ने हिस्सा लिया। कामयाब बोली से PSL की कमर्शियल वैल्यू में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर डॉक्टर आसिफ नजल ने कहा है कि हम अपने खिलाड़ियों की सिक्योरिटी और मुल्की वकार पर कोई समझौता नहीं करेंगे। T20 वर्ल्ड कप भारत में नहीं खेलेंगे। ढाका में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए स्पोर्ट्स एडवाइजर डॉक्टर आसिफ नजल ने कहा कि हमें तवक्को है कि ICC हमारे मौकिफ को गैर जानबदारी से सुनेगा। भारतीय बोर्ड ने खुद कोलकाता नाइट राइडर्स को कहा कि वो मुस्तफिजुर रहमान को सिक्योरिटी नहीं दे सकते। ये वाज़ेह सबूत है कि भारत में खेल के लिए माहौल महफूज नहीं है। डॉक्टर आसिफ नजल ने कहा कि बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया हुआ है। हम दूसरे वेन्यू श्रीलंका में वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ICC ने अपने खत में भारत में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को दरपेश सिक्योरिटी खतरात पर कोई खास तवज्जो नहीं दी। ये सिक्योरिटी का बड़ा इशू है। बिग बैश क्रिकेट लीग में होबार्ट हरिकेन्स ने एडिलेड स्ट्राइकर्स को 37 रन से हरा दिया। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। होबार्ट में खेले गए मैच में होबार्ट हरिकेन्स ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 178 रन बनाए। मिचेल ओवन 33 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। रिहान अहमद ने 29, निखिल चौधरी ने 23, मैथ्यू वेड ने 27 रन बनाए। मैकलिस्टर राइट 20 रन पर नॉट आउट रहे। एडिलेड स्ट्राइकर्स की जानिब से ल्यूक वुड और जैमी ओवर्टन के हिस्से में 2-2 विकेटें आई। जवाब में एडिलेड स्ट्राइकर्स की टीम 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 141 रन बना सकी। लियाम स्कॉट के अलावा कोई भी बल्लेबाज जिम्मेदारी से ना खेल सका। लियाम स्कॉट ने 58 गेंदों पर 91 रन की इनिंग्स खेली और नॉट आउट रहे। उन्होंने 5 छक्के और 6 चौके लगाए। होबार्ट हरिकेन्स के रिशाद हुसैन ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। रायली मेरिडिथ और नेथन एलिस ने 2-2 विकेटें अपने नाम की। It's through the leg side. At one stage they were 4 for 2 for Riley Meredith and 2 for Nathan Ellis. पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज। घुड़सवार उस्मान खान इंटरनेशनल रैंकिंग में टॉप पोजीशन पर आ गए हैं। पाकिस्तान के बासलाहियत नौजवान उस्मान खान ने आलमी सतह पर एक बार फिर कौमी परचम बुलंद कर दिया। इंटरनेशनल इक्वेस्ट्रेशन फेडरेशन ने मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जोन की रैंकिंग जारी की है, जिसमें पाकिस्तानी घुड़सवार उस्मान खान ने दोबारा पहली पोजीशन पर कब्जा जमा लिया है। उस्मान खान इससे कबल 2019 से 2021 तक नंबर 1 पोजीशन पर रह चुके हैं। इंटरनेशनल इक्वेस्ट्रेशन फेडरेशन की रैंकिंग में 6 इवेंटिंग जोन्स हैं। इवेंटिंग जोन्स की रैंकिंग की बुनियाद पर चैंपियनशिप की दर्जाबंदी का फैसला होता है।
खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।